aldol condensation. Main characteristics of aldol condensation is presence of alpha hydrogen. Means the aldehydes or ketones having alpha hydrogen undergoes aldol condensation. Getting? Like if we will take the example of the CS3CHO. CS3CHO, what is the name of this compound? This is the ethanol. Ethanol. The functional group in the ethanol is what? CHO. क्या होता है? CHO. CHO functional group है. That is why this carbon is the alpha carbon and hydrogen is known as the alpha hydrogen. So how many alpha hydrogen are here? 3. When it will react with the same, like it will react with the same ethanol, and we can write the ethanol like this: CH2H and CHO in the presence of the dilute NaOH. Dilute NaOH is also known as what? Alkali. At the same time, we all know that the electronegativity of the carbon is greater than the hydrogen. That is why the bonding will be broken towards the carbon. It will carry the negative and it will carry the positive. At the same time, the bonding between the carbon and oxygen, it will be broken towards the oxygen. Oxygen will carry the negative and carbon will carry the positive. That is why CH2 will attack on the C and H will attack on the O after breaking this double bond. Then after the species CH3C single bond OH H CH2. CH2 can be written like S and CHO will be formed. This is the functional group CHO and it takes the priority over the OH. That is why we will write its name. We will start its numbering from the CHO side and its name will be what? 3-hydroxy butanol. क्या नेम हो जाएगा? 3-hydroxy butanol. As the name indicated as a condensation, that is why we will heat this and it will remove one water molecule. This water molecule will be removed. This. And the double bond will be created here, pi bond. That is why the compound CH3CH double bond CH CHO will be formed. ना ये CHO यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रियोरिटी लेगा तो इसे नंबर 1 2 3 4. तो नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट. डबल बॉन्ड पहला टच कहाँ पे कर रहा है? 2 पे. तो ब्यूट टू इन. इन का ई ड्रॉप करेंगे बिकॉज इसकी स्टार्टिंग वॉवेल से है. तो नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटूइनल. क्या हो जाएगा नेम? ब्यूटूइनल. फिर से एक बार समझिए, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कंपाउंड्स में होती है? जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होती है. ठीक है. और हम लोग क्या लेते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स लेते हैं. लाइक हमने एक इथेनॉल लिया तो दूसरा भी हमारा क्या होना चाहिए? इथेनॉल. और इसी समय हमने क्या बताया कि CH2 नेगेटिवली होगा जब इसका मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन. दैट इज वाई सिग्मा बॉन्ड इसका किधर ब्रेक होगा? CH2 साइड पे. इसीलिए CH2 क्या कैरी करेगा? नेगेटिव. और हाइड्रोजन क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव. एट द सेम टाइम जो C डबल बॉन्ड O है, ये C double bond O will be broken towards the O because O is more electronegative than the carbon. That is why carbon carries the positive and O will carry the negative. अब क्या होगा? CH2 नेगेटिव अटैक करेगा CH प्लस पे और H प्लस किस पे अटैक करेगा? O माइनस पे. तो क्या बन जाएगा बेटा कंपाउंड? CH3CH सिंगल बॉन्ड OH CH2 CHO ना. और इसका नेम क्या हो जाएगा? 3-hydroxy butanol. इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये निकल रहा है, इसको हाइड कर दिया. अब बोलेंगे कंपाउंड क्या बन रहा है? CH3CH CH CHO. बट यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी. दैट
दैट इज़ वाई यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 4। नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटूइनल। क्या नेम हो जाएगा, ब्यूटूइनल। क्या नेम हो जाएगा, ब्यूटूइनल। सो दिस इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन is the Cannizzaro, sorry, crossed aldol. The second name reaction is the cross aldol condensation. Cross aldol condensation. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की जैसी है, बट कंडेंसेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक जो था वो यहाँ पे मैच कर रहा है, क्या कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट द सेकंड कंडीशन डिफर कर गई है, यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो एक होगा एल्डिहाइड उससे डिसिमिलर हम दूसरा लेंगे, मतलब उससे एक अलग लेंगे। लाइक पहला मैंने यहाँ पर इथेनॉल लिया तो दूसरा प्रोपेनॉल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रोपेनॉल लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CHO। इसका नेम क्या है, प्रोपेनल। एक हमने क्या लिया, प्रोपेनल लिया, और प्रोपेनल का अटैक कराएंगे, इस पे अटैक कराएंगे किसका, इथेनॉल का। और इथेनॉल का फॉर्मूला अभी मैंने अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे आपको ओपन करके दिखाया था। कैसे लिखेंगे हम, CH2HCHO। ठीक है, तो पहला अटैक ये इस पे है, तो हम अभी एरो नहीं बना रहे बिकॉज हम सभी इसकी पॉसिबिलिटी के साथ हम सेकंड बनाएंगे ना। तो अभी सबसे पहले बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे तो इट विल कैरी द नेगेटिव एंड इट विल कैरी द पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल कैरी द नेगेटिव एंड इट विल कैरी द पॉजिटिव। नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या बन रही है, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर CH2 CHO। ठीक है, ये तो हमने पहली पॉसिबिलिटी कराई जब इथेनॉल पे अटैक कराया किसका, इथेनॉल अटैक कर रहा है किस पे, प्रोपेनॉल पे। अगर मैं कह दूं कंडीशन चेंज है, मीन्स हमने इसको सबस्ट्रेट मान लिया है इथेनॉल को और प्रोपेनॉल का अटैक कराया। तो प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है बेटे, प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन CH2 वाला है। तो CH2 वाले को हम ओपन करेंगे और CH3 हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, हैंग कर जाएगा। ये देखो हैंग कर रहा है, और ये CH2 का H अटैक करने जाएगा। क्यों करने जाएगा, बिकॉज ये आपका कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या है आपका, अल्फा हाइड्रोजन ना। तो हमने फिर बताया ये इस पे अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इट विल कैरी नेगेटिव, दिस विल कैरी पॉजिटिव। ये बॉन्ड कार्बन की तरफ, कार्बन विल कैरी नेगेटिव, हाइड्रोजन विल कैरी पॉजिटिव। तो CH किस पे अटैक करेगा, CH पे, और H किस पे अटैक करेगा, O पे। बताओ क्या बन रहा है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी का प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH, इस पे लगा है CH3 और क्या बना, CHO। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट हैं। बट बेटा आपसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एंड कंडेंसेशन, अगर यहाँ पर कंडेंसेशन है मीन्स हम इसको क्या करेंगे, हीट। तो याद रखिएगा ये H2 वाला इस OH के साथ और ये H इस OH के साथ क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा। तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, 2H2O। ठीक है, कब निकलते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो ये आपका कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो नेम क्या होगा, पेंट टू इन अल। लेकिन अगर इसकी करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, मेथाइल। तो नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और ब्यूट टू इन अल। That is the Cannizzaro. It is somewhat similar to the aldol and cross aldol, but मतलब सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि इसमें सिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। बट डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी ये है कि एब्सेंस में होता है, किसकी,
एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे में नहीं होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। किस में होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेल्डिहाइड, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? HCHO। तो दोनों ही होते हैं इसके फॉर्मूला ना। मैंने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख लिया। ये फॉर्मेल्डिहाइड का IPAC नेम क्या होता है? मीथेनल। क्या नेम होता है? मीथेनल। अब मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि इसमें सिमिलर एल्डिहाइड होता है या कीटोन्स होता है। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन है कि जैसे फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद आपको क्या यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर अल्फा कार्बन नहीं दिख रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में होती है रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा? इसमें मैकेनिज्म के बेस पे नहीं बता रहे, सिंपली बताते हैं कि ये बॉन्ड मान लीजिए ब्रेक कर दिया जाएगा तो कौन से दो एटम की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी? कार्बन की और ऑक्सीजन की। कार्बन की जो डिस्टर्ब होगी उसको एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, और जो ऑक्सीजन की डिस्टर्ब होगी उसको एक हाइड्रोजन इनके पास से मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये CH2 पे एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे आप तो CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताएंगे आप? CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और सिंगल बॉन्ड लग गया। O को एक हाइड्रोजन मिला तो क्या बन गया? OH। तो मीथेनल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? मीथेनॉल में। किस में कन्वर्ट हुआ? मीथेनॉल में। अब यहाँ से क्या गायब हो गया? H गायब हुआ, यहाँ पे क्या बचा? OK। और यहाँ पे H गायब हुआ तो क्या बचा? CO। तो इस पे क्या बचा? HCO। इनके पास से OK जोड़ दिया तो क्या हो गया? HCOOK। HCOOK ये होता है क्या? पोटेशियम मीथेनोएट। इस रिएक्शन को कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये तो मैंने एलिफैटिक में बताया। एक और मैं बता दूं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्या? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को सब जानते हो ना। बेंजल्डिहाइड के पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे हो रहा है। ठीक है। दूसरा मैंने कर लिया रिएक्शन इस बार NaOH के साथ, और फिर यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया बेटा। जब फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो ये SCHO हो गया। पहले की तरह इसमें फिर बता दें, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा एक O का, तो वहाँ पे एक H किसके पास से आएगा? इनके पास से यहाँ पे आएगा, और एक O पे आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? एक रिंग बनेगी बेंजीन की। इस पे क्या लग जाएगा? CH2। फिर उसके बाद एक H इनके पास से मिलेगा तो O पे लग गया CH2OH। इसका नाम क्या हो गया? बेंजिल एल्कोहल। क्या नेम हो गया? बेंजिल एल्कोहल। O और ONA कहाँ लग जाएगा? रिंग पे। तो रिंग पे जब ONA लगा जाके तो नाम क्या हो गया इसका? फॉर्मूला क्या हो गया? COONA। और इसका नाम क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट। sodium benzoate. Getting or not? So this type of reaction is known as the Cannizzaro reaction. It is also a name reaction and it occurs in the aldehydes and ketone. तो देखते हैं इस रिएक्शन को। पहले मैं एल्डिहाइड के लिए बताती हूँ। लाइक CH3C डबल बॉन्ड OH. Do you know its name? Its name is ethanol. What is its name? Ethanol. Ethanol is treated with the amalgamated zinc. अमलगेटेड जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? ZnHg। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन। और किसकी प्रेजेंस देती है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब इधर ध्यान से देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड O है ना, तो डबल बॉन्ड O है तो इसको रिडक्शन करा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन वी विल प्रोवाइड? 4। क्यों? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे ना, आप ऐसे ब्रेक करोगे, इधर एक H दोगे, फिर एक इधर H दोगे, फिर ब्रेक करोगे, एक इधर H दोगे, एक इधर H दोगे, तो टोटल H कितने आपने यूज़ किए? 4। इनको 2 H मिल गए तो इसने क्या निकाल दिया? H2O। फिर इनके पास 2 H मिल गए और एक H पहले से था तो CH2 में H जोड़ो तो क्या बन गया? CH3। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH3 का नेम क्या होता है? ईथेन। तो इथेनॉल से क्या बना? इथेनल। इथेनल क्या है? एल्डिहाइड है। अब हम एक कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। CH3 ये कीटोन का एग्जाम्पल है। इसका नेम क्या होता है? प्रोपेनोन। क्या नेम होता है? प्रोपेनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ द अमलगेटेड जिंक
हाँ, और क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो देखो इधर फिर आप देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2H इसको देंगे, 2H इसको, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो टोटल H हमने कितने देने हैं, 4H। कितने H देने हैं, 4H। यहाँ ये कॉमन लगा दे, बिकॉज यहाँ मैंने हाइड्रोजन सिर्फ आपने बताए। देखो इधर यहाँ पे 2H मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2। और ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइट कितने H के साथ, इसको 2H मिल जाएंगे, तो ये क्या बना देगा, H2O। और इनके पास 2H मिल जाएंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, CH2। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3। तो प्रोपेनोन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में। तो क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड for the conversion of aldehydes or ketones into the hydrocarbon, that is the alkane, that is the carbylamine reaction. Carbylamine reaction is also known as the isocyanide test and it is used for the detection of the primary amine. इसकी खास बात ये होती है कि ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस में यूज़ होता है। 1 डिग्री अमाइन के आप लोग को शॉर्टकट बताया था ना, कि जो अमीनो ग्रुप का N होता है, उस N पे हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2। अगर हाइड्रोजन 2 होते हैं तो अमाइन 1 डिग्री का होता है, हाइड्रोजन 1 होता है तो अमाइन 2 डिग्री का होता है, और अगर हाइड्रोजन 0 है तो अमाइन 3 डिग्री का होगा। ठीक, तो लाइक अभी एक बेसिक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने लिया हुआ है CH3NH2। आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि कितने डिग्री का है। अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इट इज़ द प्राइमरी अमाइन, मतलब कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज N के पास H कितने हैं, 2 है, शॉर्टकट है ना। और एक लगा हुआ है कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन। क्या नेम हो जाएगा, मीथेनामाइन। ये एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH_Cl3। क्या होता है, CH_Cl3। इसकी रिएक्शन और कौन देते हैं, KOH। यहाँ पे अगर 3Cl है तो यहाँ पे KOH कितने दे देंगे हम, 3 दे देंगे। और इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3Cl है और 3K हैं, तो पहला प्रोडक्ट आपको दिमाग में आ गया होगा, क्या होगा, 3KCl। अब 3 यहाँ पे OH है, यहाँ पे H कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे एक H और ऐड हुआ, तो कितने H हो गए, 3। तो 3H और 3OH अगर मिलेंगे तो कितने H2O बनेंगे। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3H और लिख दिया 3OH, तो आप बता सकते हैं कितने H2O बनेंगे, 3H2O ना। अब देखिए ये पूरा यूज़ हो गया, ये पूरा यूज़ हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ कार्बन। ये भी यूज़ हो गया, तो क्या बचा, N बचा, और क्या बचा, CH3। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया आके, CH3NC। इसका नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड बनने की वजह से इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। और आइसोसाइनाइड जैसे ही बनता है, एकदम गंदी सी स्मेल आती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ये कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेल। इसी फाउल स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये 1 डिग्री अमाइन है। और बाई प्रोडक्ट आपने एक और आइडेंटिफाई किया था, क्या आइडेंटिफाई किया था, Cl होगा, 3KCl + 3H2O। अभी आपके दिमाग में एक बात होगी कि मैंने 1 डिग्री अमाइन लिखा, मैंने कहा डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, तो आपके दिमाग में एक और बात होगी कि अगर हम लिख दें एनिलीन, तो क्या ये 1 डिग्री अमाइन है। आप आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं। अच्छा, N पे 2 हाइड्रोजन है, तो कितने डिग्री का अमाइन हुआ, 1 डिग्री का हुआ ना, तो इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन। लेकिन बेटा कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। इसका नाम क्या है, एनिलीन। क्या नेम है, एनिलीन। C6H5NH2, C6H5NH2। इसकी रिएक्शन फिर से किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। आप बताइए KOH कितने यूज़ करूँगी, 3KOH, और क्या करा दूँगी, हीट कराऊँगी। 3K 3Cl मिलके क्या बनाएंगे, आप बताइए, बनाएंगे 3KCl। 3OH और 3H मिलके क्या बनाएंगे, 3H2O। नाउ अब तो बहुत स्मेल आने लगी कंपाउंड से, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बैड स्मेलिंग कंपाउंड इज व्हाट, N से H चले गए तो N डायरेक्टली किससे बॉन्डिंग कर लेगा, C से, तो क्या बनेगा, C6H5NC। इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, फिनाइल
आइसोसाइनाइड। इसकी स्मेल कैसी होगी? गंदी सी स्मेल। लेकिन गंदी सी स्मेल थोड़ी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? फाउल स्मेल। कैसी स्मेल लिखेंगे? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। और इसी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। The sixth reaction is the coupling reaction. This reaction is also known as the dye test. मतलब इसे हम कहीं ना कहीं टेस्ट में यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। आपने बेटा एक कंपाउंड पढ़ा है, इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड। शायद आपको याद होगा, आपने इस तरीके से एक कंपाउंड पढ़ा था, इस पर N2Cl लगा था। N2Cl को अगर एक बारी हम ओपन करते हैं ना तो N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl होता है, एंड इट विल कैरी द पॉजिटिव एंड दिस विल कैरी द नेगेटिव। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। नेम क्या है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ये डिटेक्शन ऑफ फिनॉल के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH। इसके पैरा कंडीशन का जो हाइड्रोजन है इसको मैंने ओपन कर लिया और रिएक्शन हमने कौन से मीडियम में कराई बेटे? OH। इसका नाम क्या है? फिनॉल। फिनॉल के डिटेक्शन टेस्ट ये होता है। अब देखो यहाँ से Cl और यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H, यहाँ से क्या हो गया? रिलीज हो गया। यहाँ से Cl रिलीज हुआ और यहाँ से HCl निकल गया। तो ये एक्सटेंड कर जाता है कॉन्जुगेशन, और जब एक्सटेंड करता है कॉन्जुगेशन तो कॉन्जुगेशन एक रिंग से दूसरे रिंग पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पाई टू पाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है और हमें कलर दिखने लगता है। N ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, और दूसरा N अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेगा फिनॉल की रिंग से। फिनॉल की रिंग क्या थी? ये बेंजीन रिंग थी, और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा था बेटे? OH लगा था, और यहाँ पे पाई बॉन्ड एक्सटेंड कर गया। तो आप अगर पढ़ेंगे ना तो कैसे पढ़ेंगे? डबल सिंगल 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 डबल। इसका मतलब एक रिंग से दूसरी रिंग में पाई बॉन्ड क्या कर गया? एक्सटेंड कर गया। इसी वजह से ये कलर देने लगता है। और इस किस कलर का कलर ये बनाता है? ऑरेंज डाई बनाता है। पहले ये बहुत पॉपुलैरिटी के साथ यूज़ होता था, लेकिन इसकी जो डाई होती है वो थोड़ी स्मेल करती है। दैट इज़ वाई इसकी जो डाई करती है ना वो स्मेल करती है, तो इसलिए इसका बहुत हम यूज़ नहीं करते। तो अब जो आप जब कभी भी आपके यहाँ बेडशीट आए ना तो उसमें आप देखिएगा उसके टैग रेट पे लिखा होता है कि फ्री फ्रॉम एजो डाई। एजो डाई, ये जो डाइजो है ना, एजो डाई से फ्री कर दी जाती है, मतलब उसमें से गंदी सी स्मेल नहीं आती। और अगर आप कम रेट की बेडशीट खरीदते हैं तो उसको आप जैसे ओपन करते हैं उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, और उस पर अगर आप बैठते हैं तो कभी कभी ईचिंग भी क्रिएट होती है। तो अब उससे फ्री फ्रॉम एजो डाई अब बनाया जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब क्या आप करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज डाई बनती है, और कलर देखते ही आप जान जाते हैं कि जो हमने कंपाउंड यूज़ किया था वो क्या था? आपका फिनॉल था। इस बनने वाले कंपाउंड में आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये तो मैंने सिर्फ एक के लिए बताया है, ये एक और कंपाउंड के लिए यूज़ होता है। एक और कंपाउंड क्या आपको अभी बताया था? एनिलीन के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपके दिमाग में एनिलीन का टेस्ट आता है तो एनिलीन के आप दो टेस्ट लिख सकते हैं, एक कार्बिलामाइन टेस्ट लिख सकते हैं और एक डाई टेस्ट। एक आगे चल के और जब टेस्ट का वीडियो मैं डालूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी हिंसबर्ग टेस्ट भी इसी के लिए होता है। तो आपने फिर से क्या लिया है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एक बार फॉर्मूला रिवाइज करिए मेरे साथ। C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। अब इसके साथ हम किसका यूज़ कर रहे हैं बेटा? एनिलीन का यूज़ कर रहे हैं। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। क्या होता है? C6H5NH2। इसका नेम क्या है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और इसका नेम क्या है? एनिलीन है। क्या नेम है? एनिलीन। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकलेगा। यहाँ पर मीडियम जो हम यूज़ करेंगे वो H+ यूज़ करेंगे। कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे? H+।
अब ये एक्सटेंशन में चला जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड एक्सटेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से पाई टू पाई एक्सटेंशन की वजह से ये कौन से रेंज में आ जाएगा, विजिबल रेंज में आ जाएगा, और इसकी डाई हमें कलरफुल दिखने लगेगी, है ना। और ये डाई का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो कैसे आप बताएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे क्या लग गया है, NH2, और ये बनने वाली डाई का कलर कैसा हो गया बेटा, येलो कलर का हो गया। कौन से कलर का, येलो डाई। तो एनिलीन कौन सा डाई बनाती है, येलो डाई, जबकि फिनॉल कौन सा डाई बनाती है, ऑरेंज डाई। इस पे पैरा पोजिशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, एमिनो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या नेम हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ओके। रिएक्शन, डाउ रिएक्शन आपकी किस में होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, जैसे कि हेलो एरीन्स। हेलो एरीन में मैं एग्जांपल देती हूँ, C6H5Cl किसके होती है, C6H5Cl। C6H5Cl का जरा नाम बताइए, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। क्या नेम होता है, क्लोरोबेंजीन। कौन से टेम्परेचर सबसे पहले नंबर पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे, NaOH से। तो OH और Cl सब्सिट्यूट हो जाता है, और यहाँ से NaCl निकल जाता है, और OH लग जाता है, और बन जाता है क्या, फिनॉल। टेम्परेचर क्या होता है, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर पे होती है, और मीडियम कैसा होता है, इसमें एसिडिक होता है। तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, फिनॉल। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, फिनॉल। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, फिनॉल। डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कौन सी, एजोडाइटेस। एजोडाइटेस में हमने किसका फॉर्मेशन किया था, डाइजोनियम सॉल्ट का, उसको इसी से प्रिपेयर करते हैं। और कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने सेंडमेयर के फर्स्ट पार्ट में जो रिएक्शन बताई थी वो डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन थी। इसमें क्या होता है, इसमें आप यूज़ करते हैं C6H5NH2। C6H5NH2 का नेम क्या होता है, एनिलीन। क्या नेम होता है, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl से। NaNO2 HCl से रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन ऑकर्स एट 273 केल्विन टेम्परेचर से लेकर के 278 केल्विन तक होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, तो H मिलके H कितने हो गए बेटे आपके, 4H हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 2O है, और 2O है तो कितने H2O निकलेगा, यहाँ से 2H2O, ठीक है। और फिर यहाँ पर Na किसके साथ निकल जाएगा, Cl, एक Cl के साथ, और तो ये दोनों निकल गए, और एक यहाँ से N इस पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, N2, और एक Cl आ जाएगा। तो पहला इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, C6H5N2Cl। क्या हो जाएगा, C6H5N2Cl। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाया आपने, NaCl। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनाया, 2H2O। इसका नाम बताएंगे आप, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, या बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। नाउ कम टू द 9th रिएक्शन, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसे फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कुछ लोग कहते हैं। ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में है, और एरोमेटिक कंपाउंड में बेटा अभी जो मैंने जस्ट यूज़ किया था कंपाउंड, वो क्या था, C6H5Cl, दैट इज़ द क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, फिर से आपको क्लोरोबेंजीन के केस में बता रही हूँ। ये क्लोरोबेंजीन में भी होता है, बेंजीन में भी होता है, बट स्पेशल केस मैं किसका ले रही हूँ, क्लोरोबेंजीन का। किसका ले रही हूँ, कि क्लोरोबेंजीन का। और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें इसके रिएक्शन में एल्काइलेशन टर्म है, इसीलिए मैं एल्काइल हैलाइड से करा रही हूँ। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl। इसका नाम ऐसे एल्काइल हैलाइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोमीथेन है। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। ये लुईस एसिडस के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पैरा पे बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि वहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो पैरा पोजीशन का यहाँ पे एक H है,
पैरा पोजीशन से H निकलेगा और H और Cl यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और पैरा पे क्या आ जाएगा, सब्सिट्यूट होके क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो बताइए कि प्रोडक्ट में पैरा पे कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल आ गया। और इसकी मेन पैरा पोजीशन पे कौन आ गया, Cl, मीन्स CH3 और Cl एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे हो जाते हैं, पैरा पोजीशन पे। और क्या यहाँ से निकल रहा है बेटे, HCl निकल रहा है। इस HCl को निकालने का काम, यहाँ पे कैटलिस्ट फॉर्म करने का काम, सॉरी कैटलिस्ट कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करने का काम कौन करता है, AlCl3। इसीलिए AlCl3 क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है। और किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका नाम क्या होता है, 1-chloro-4-methyl बेंजीन। 1-chloro-4-methyl बेंजीन इसका एक और नेम होता है, क्या नेम होता है, 4-chlorotoluene भी कह सकते हैं। ये इसका कैसा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। माइनर प्रोडक्ट में बेटा ये पैरा पोजीशन की बजाय कहाँ चला जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो इफ़ एनीवन विल टॉक फ्रॉम यू, फिर विल आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, तो बेटा इसका माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका माइनर प्रोडक्ट होता है Cl आपका मेन पोजीशन पे रहेगा और CH3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पे। तो नेम क्या हो जाएगा, 1-chloro-2-methyl बेंजीन। और ये कैसा प्रोडक्ट होता है बेटा, माइनर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के जैसा ही, सिर्फ यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यूज़ किया था, यहाँ पर एसाइल हैलाइड यूज़ करेंगे। इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम जो है क्लोरोबेंजीन फिर से लेते हैं। हाँ, पहले में मैंने यहाँ पे HCl निकाल दिया था, फिर मैंने देखा कि मैंने माइनर प्रोडक्ट बना दिया, इसलिए मैंने HCl को यहाँ से काट दिया है। तो HCl इसके प्रोडक्ट में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, CH3COCl से कराते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ से पैरा पोजीशन का H और Cl निकल जाएगा, तो पैरा पे क्या आ जाएगा, COCH3। और COCH3 जब पैरा पे आता है तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो क्या बनता है, COCH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-chloroacetophenone, 4-chloroacetophenone होता है। और यहाँ पैरा पोजीशन पे, इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट में ये पोजीशन कहाँ पे पहुँच जाती, सेकेंड पे पहुँच जाती। और क्या बन जाता है, Cl यहाँ मेन पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे COCH3। तो नेम क्या हो जाता है, 2-chloro और एसिटोफिनोन, 2-chloroacetophenone। ये ए स्मॉल रहेगा, याद रखिएगा। नेम रिएक्शन, दैट इज द इटार्ट रिएक्शन। In the Itard reaction, toluene will convert into the benzaldehyde. Do you know the formula of toluene? Toluene का formula C6H5CH3 and structurally we will write like as. It is the toluene. क्या कहते हैं इसे, toluene. Toluene when treated with the chromyl chloride किससे रिएक्शन करता है, chromyl chloride, CrO2Cl2. It is known as chromyl chloride. Chromyl chloride in the presence of the CH2. When it reacted in the presence of the CH2, तो आप देख रहे हैं कि CH3 के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। 3 में से 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, तो कितनी वैकेंसी आ जाती है, 2 की। और वो जो 2 हाइड्रोजन हटते हैं वो यहाँ के O के साथ बॉन्डिंग करके H बनाते हैं। दैट इज़ वाई जो इसका सेकेंड बनता है, सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेकेंड स्ट्रक्चर में रिंग होती है और रिंग पे लग जाता है क्या करके आपका CH। और CH के पास ये 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। पहला इसी को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, O पहले एक फ्रंट में लिंकिंग करने के लिए आएगा, तो OCrOHCl2 क्या हो जाएगा, OCrOH in bracket Cl2, next one OCrOH in bracket Cl2. It will undergoes dehydrolysis. इसकी क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। देन यहाँ पे ब्रेक होता है ऐसे, इधर हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और एक CH पे 2 H होंगे तो वो कंडेंस होकर के वाटर निकाल देंगे और अल्टीमेटली वी विल गेट द सिंगल O। और यहाँ पर क्या निकल आएगा, फाइनली आपका क्या निकल आएगा, CHO। इट इज़ नोन एज बेंजल्डिहाइड। बट क्या होता है कि जब आप बहुत रैपिड रिवीजन करते हैं ना, तो ये आप इंटरमीडिएट भूल जाते हैं कि क्या यहाँ पे बना है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बना है
ये आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट पे लिख सकते हैं। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू विल फर्स्टली राइट द फॉर्मूला ऑफ द टॉल्वीन। What is the formula of toluene? C6H5CS3. What is its name? Toluene. And then आप एक एरो बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे दिस वन. What is this? CrO2Cl2 with a slash of CH2 कार्बन डाइसल्फाइड. एंड सेकेंड नंबर पर आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस. उस कंडीशन पे आप जो है इस इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको आप स्किप कर सकते हैं. डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट का नाम क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड. इसका नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड. तो ये आपका ना लर्न करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है. आप क्या करेंगे, टॉल्वीन कन्वर्टेड इनटू द बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमिल क्लोराइड विद द CH2 followed with the acidic hydrolysis. So this reaction is known as the Itard reaction. That is the Getterman-Koch reaction. It also comes under the preparation of the benzaldehyde, that is the aromatic aldehyde. बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है. इसमें आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप बेंजीन लेंगे. बेंजीन तो सभी को पता ही होगा 12th में आकर के ना. तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6. इट इज नेम्ड एज दी बेंजीन. क्या बोलते हैं इसे, बेंजीन. इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से. कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है. आपको याद होगा इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कार्बोनिल कहने लगते हैं जब एज अ लिगेंड आपने यूज़ किया था. कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. तो COHCl की प्रेजेंस में के संग रिएक्शन होती है किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ. एट द प्लेस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 वी कैन ऑल्सो यूज द क्यूप्रस क्लोराइड. और अल्टीमेटली जो ये ग्रुप है C और HCl विल कन्वर्ट इनटू द CHO एंड दैट CHO will be attached at the main position and it is known as the benzaldehyde. क्या बोलते हैं इसे, बेंजल्डिहाइड. फिर से ध्यान दीजिए कि बेंजीन इज ट्रीटेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड विद द HCl इन प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड एंड विल कन्वर्ट इनटू द बेंजल्डिहाइड. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज द गैटरमैन रिएक्शन. नेम दोनों के सेम है इसलिए बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ये गैटरमैन रिएक्शन है और ये गैटरमैन-कोच रिएक्शन है. गैटरमैन-कोच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड. ऑन द अदर हैंड इन द गैटरमैन रिएक्शन द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विल कन्वर्ट इनटू द हैलोएरीन्स ना. सो नाउ कम टू दिस. आप सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे. डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यस, C6H5N2X. C6H5N2X. एंड इसमें क्या होगा, कॉपर मेटल का हम यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे, कॉपर मेटल के साथ HX का यूज़ करेंगे. और इसी समय ये जो N2 है ये इवॉल्व हो जाएगी गैस और यहाँ यूज़ होने वाला हैलो वो यहाँ पे आ जाएगा और CuX को लेकर के अलग हो जाएगा. तो मेनली प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, हैलो बेंजीन. क्या बनेगा आपका, हैलो बेंजीन प्लस N2 प्लस CuX. अब आप इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे कि X की जगह आप यूज़ कर सकते हैं Cl को या फिर आप किसका यूज़ कर सकते हैं, Br का यूज़ कर सकते हैं. किसकी जगह, X की जगह. तो आपने क्या बताया, आपने बताया बेंजीन डाइएज़ोनियम salt will convert into the halobenzene. किसमें कन्वर्ट होगा, हैलोबेंजीन. लाइक यहाँ पे Cl आ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर Br आ जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन. गेटिंग और नॉट. Next reaction, it is used, this reaction is used for the synthesis of the 1-degree amines. अमीन्स में यूज़ होता है जैसे मेथनामाइन हो गया, अल्केनामाइन मेनली बोलते हैं इसे. गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो नेम रिएक्शन है ये आपकी बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है बट इससे ज़्यादा ये प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है. एग्जामिनर्स मोस्टली इस रिएक्शन को पूछते हैं बिकॉज ये थोड़ी सी लेंथी रिएक्शन है ना, दैट इज़ वाई. तो गैब्रियल थैलीमाइड जो आपका जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, थैलीमाइड का यूज़ जो आप करने जा रहे हैं,
आपको शायद से थोड़ा थोड़ा याद होगा कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में जब थैलिक एसिड बनाया था, तो थैलिक एसिड की अमोनिया से जब रिएक्शन कराए थे तो थैलामाइड बना था, और थैलामाइड को फिर हीट करने पर वो एनहाइड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, जिसे हम क्या कह रहे थे, थैलीमाइड कह रहे थे। थैलीमाइड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O ये दो ग्रुप होते हैं और एक ब्रिज लिंकिंग हो जाती है किसकी, NH की, तो इसका नाम क्या हो जाता है, थैलीमाइड। क्या नेम होता है, थैलीमाइड। पीएच इसमें साइलेंट होता है, तो नेम इसका हो जाएगा थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन बेटा हम कर देते हैं किससे, KOH से। जब इसकी रिएक्शन KOH से करते हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये H है और ये OH, HOH निकल के क्या बना देगा आपका H2O। तो जहाँ H है यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द पोटेशियम थैलीमाइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O N K, and K will carry the positive and will carry the negative. Ultimately it will react with the alkyl halide. alkyl halide का हमने फॉर्मूला क्या लिखा, RX से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से KX निकल जाता है, माइनस का मतलब क्या है, निकल जाना, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, R आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका, ये आपका रिंग है, रिंग से अटैच हो गया CO, इधर भी अटैच हो गया क्या आपका CO, और N से लिंकिंग कर लिया किसने, R ने। ठीक, तो नाम इसका हो गया एन एल्काइल थैलीमाइड। क्या नेम हो गया, एन एल्काइल थैलीमाइड। क्या नेम हो गया, एन एल्काइल थैलीमाइड। एन एल्काइल थैलीमाइड की हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। किससे कराते हैं, एक्वस NaOH से कराते हैं। किससे कराते हैं, एक्वस NaOH। जरा एक बारी देखेंगे आप कैसे कराते हैं। देखिए जैसे ये NR है ना, यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग करा देते हैं, यहाँ ब्रेकिंग कराते हैं, यहाँ आता है ONA और यहाँ आता है H, फिर ऐसे ब्रेक कराते हैं, इधर आता है ONA और यहाँ क्या आता है H। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, RNH2। क्या बन रहा है, RNH2, और ये क्या रिलीज हो रहा है, COONA, डाइसोडियम थैलेट। डाइसोडियम थैलेट यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है, बट ना बच्चे जब इसे लिखते हैं तो बड़ा होने की वजह से ये बहुत देखने में बहुत बड़ा प्रोडक्ट लगता है, तो दैट इज़ वाई बच्चों को लगता है ये मेजर प्रोडक्ट है, और वो इसे मेजर कंसीडर कर लेते हैं। और कुछ तो कंडीशन ऐसी आती है कि कुछ बच्चे 1 डिग्री अमाइन को लिखने को भी भूल जाते हैं। मीन्स जो यहाँ पे बना हुआ RNH2 है ना, एल्केनामाइन, एल्केनामाइन कितने डिग्री का अमाइन है, 1 डिग्री का अमाइन है, और इसी को बनाने के लिए ही इसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका मेन प्रोडक्ट यही है, ये इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, इसीलिए हमने इसका फॉर्मेशन किया है। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं आप। क्या करेंगे, इसमें थैलीमाइड है, थैलीमाइड की रिएक्शन KOH से कराएंगे। जब इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, वाटर, और K किसके साथ आ जाएगा, N के साथ, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन RX से कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल रहा है बताइए, KX, और जो R है किसकी जगह आ रहा है, R किसकी साथ आ रहा है, N के साथ, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, N एल्काइल थैलीमाइड। क्या नेम हो गया, L एल्काइल थैलीमाइड। फिर इसकी हमने NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करा दी, और हाइड्रोलिसिस कराने पर कैसे ब्रेक होता है, NaO माइनस H प्लस इनके पास आता है, NaO माइनस इनके पास आ जाता है, तो ये फाइनली बना लेता है क्या, रिंग COONA, और क्या बन जाता है, RNH2। सो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस इन रिएक्शन। दिस रिएक्शन यू ऑल हैव रेड दिस रिएक्शन इन द हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि आपने यूजुअली देखा होगा कि आपने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े होंगे सब में आपने क्लोरो बनाया होगा, और क्या बनाया होगा, ब्रोमो बनाया होगा, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। बट डिफ़िकल्ट होता है किसको बनाना, आइडो को, फ्लोरो को। तो आइडो के लिए हम लोग फिंकेलस्टीन और फ्लोरो के लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक रिएक्शन पहले देखते हैं। जैसे हमने यूज़ किया एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करा दिया हमने NaI के साथ। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन। सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज रिएक्शन है, X एक्सचेंज कर जाता है किससे, I से, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड, और निकल जाता है क्या, NaX निकल जाता है। और ये जो X होता है, X आपका क्या हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है। अब इसी का एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक हमने यूज़ किया
ये हेलोमीथेन की रिएक्शन हमने करा दिया किससे, NaI से, और किसकी प्रेजेंस में कराया, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराया। तो इट विल कन्वर्ट इनटू द आइटोमीथेन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइटोमीथेन, और NaX अलग हो जाएगा। ये आप क्या लिख रहे हैं, हेलोमीथेन, और ये आप क्या लिख रहे हैं, आइडोमीथेन। सो दिस रिएक्शन, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द आइडो प्रोडक्ट, एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। ओके, इट इज़ नोन एज अ फिटिग रिएक्शन। याद रखिएगा, बच्चे इसे फ्रीक्वेंटली फिटिंग बोल देते हैं, फिटिंग नहीं है, फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि एल्काइल हैलाइड में यूज़ होने वाली रिएक्शन कौन सी, फिंकेलस्टीन थी। अब हम बात करते हैं किसकी, एराइल की। ये एराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत रिजेंबल करेगी ये वुड्स से। इसमें क्या करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेलोबेंजीन। हमने यहाँ पर एक हेलोबेंजीन यूज़ किया। हेलोबेंजीन एक्स की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्रोमो को, या यूज़ कर सकते हैं क्लोरो को। तो सिंपली मैंने यूज़ किया क्या, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन लिया, हेलोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा दिया, सोडियम मेटल। सिमिलर टाइप ऑफ यूज़ करना है तो एक और मैंने हेलोबेंजीन ले लिया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, ये एक और एक्स है, तो अगर 2 एक्स हैं तो यहाँ पर हमने सोडियम भी 2 ले लिए हैं। और दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। और सिंपली होगा क्या इसमें, इस रिएक्शन में सिंपली क्या होगा कि Na किसके साथ निकल जाएगा, X के साथ। किसके साथ निकलेगा, Na X के साथ, और क्या बना देगा, NaX। NaX कितने बनते हैं आपके, 2 बनते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पे, ये आपका 2Na है और यहाँ पर X है, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, 2NaX बनेंगे, और ये दोनों रिंग आपस में ज्वाइन कर जाएंगी। और ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, इस तरीके का कुछ बनाएंगी स्ट्रक्चर, ऐसे करके। इसको बोलते हैं हम डाइफिनिल, डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। प्लस आपको आपने देखा था कि NaX निकल रहा है, तो NaX कितना निकलता है, 2 निकलता है। तो दिस इज द नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फिटिग रिएक्शन, इज अ कोल्बे रिएक्शन। इन द कोल्बे रिएक्शन वी विल यूज अ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। इट इज़ नोन एज द फिनॉल। फिनॉल का सबसे पहले, फिनॉल में कोई भी रिएक्शन कराने से पहले ये OH जो ग्रुप है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन हम फिनॉल, क्योंकि फिनॉल बहुत ही एसिडिक रिएक्शन, मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो दैट इज़ वाई हम इसकी रिएक्शन किसी से कराने से पहले इसको हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। अभी आप जरा देख रहे हैं, यहाँ पर H है, यहाँ पे OH, तो OH और H मिलके क्या निकाल देगा यहाँ से, H2O, और जहाँ H है वहाँ क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H5ONa। क्या बन जाएगा आपका, C6H5ONa। इट इज़ नोन एज अ सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, सबसे पहले CO2 से कराते हैं, और फिर उसके हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। कैसी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक। जरा यहाँ पे आप थोड़ा रफली समझेंगे कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल की हमने ऑर्थो पोजीशन पे, आप अगर ऑर्थो पोजीशन पे देखें तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, H, और यहाँ क्या होता है, C होता है। तो आप कहते हैं C इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन H, तो C कैरी करता है नेगेटिव और H क्या कैरी करता है, पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन जब CO2 से कराते हैं तो C डबल बॉन्ड O होता है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इनसे, तो ये पॉजिटिव रखता है, ये नेगेटिव रखता है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला किस पे अटैक कर देता है, पॉजिटिव पे। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखता है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ONa यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पर दिखता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH दिखता है। ठीक है, इसके बाद H+ जो दिया गया है ये यहीं पे आ जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा के यहाँ H+ आया था, और फाइनली आपको क्या दिखता है कि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप आ गया। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या दिखेगा, आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेगा फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, COOH ग्रुप आ गया। और इसी को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन एक मेडिसिन होती है, इसके उसी में इसका जो है यूज़ किया जाता है। इसका अगर IPAC कॉर्ड नेम देखेंगे तो क्या होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नेम होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि आप सभी को पता है कि
COOH टेक्स प्रियोरिटी ओवर द OH, इसीलिए इसको यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे इसको पोजीशन 1 दे दिया गया और इसको पोजीशन 2, तो नाम क्या हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज ऑल्सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी एक कौन सी है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था फिंकल स्ट्रीम रिएक्शन, फिंकल स्ट्रीम रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज का पार्ट होते हैं। स्वार्ट्ज में ना आप क्या करते हैं कि फ्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि आप फिंकल स्ट्रीम में आइडो बनाते हैं। लाइक आपने रिएक्शन में यूज़ किया, आपने CH3Br लिया और इसकी रिएक्शन आपने AgF से करा दिया, तो क्या बन जाएगा आपका CH3F बन जाएगा, और क्या रिलीज़ कर देगा यहाँ से आपका AgBr रिलीज़ कर देगा। आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो Br है और ये F है, ये दोनों एक्सचेंज कर गए, ये दोनों एक्सचेंज कर गए, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, फ्लोरोमीथेन। क्या बन रहा है प्रोडक्ट आपका, फ्लोरोमीथेन। एंड एट द प्लेस ऑफ द सिल्वर फ्लोराइड वी कैन ऑल्सो यूज द Hg2OF2 और COF2 और SbF3, इतने सारे हम रिएजेंट्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द फ्लोरो कंपाउंड। दैट इज़ द सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में पहला पार्ट जो है वो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने किसका यूज़ किया था, एनिलीन का यूज़ किया था। एनिलीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C6H5NH2 होता है। इसकी रिएक्शन हम जब कराते हैं किसके साथ, NaNO2 और HX के साथ कराते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन। देन क्या होता है, ये NH2 इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है। यहाँ पर N2+ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, X-। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नेक्स्ट स्टेप। अब ये आपका बेसिकली ये आपका जो ये अब स्टेप बता रही हूँ, ये सैंडमेयर का स्टेप है। सैंडमेयर में क्या होता है, N2+ X- है, ये रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, Cu2X2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, Cu2X2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। और Cu2X2 के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर जो हैलो आपका यूज़ होता है, वही यहाँ पर आपका हैलो बेंजीन बना लेता है। उस हैलो की जगह आप तो ना तो बहुत ही स्मॉलर वन ले सकते हैं हैलो, और ना ही बहुत लार्जर वन ले सकते हैं। मीन्स वी विल अवॉइड आइडो एंड फ्लोरो, मीन्स वी कैन यूज़ ओनली द क्लोरो और वी कैन यूज़ द ब्रोमो। तो डाइजोनियम सॉल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया है, हैलो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसमें हम X की जगह ले लेते Cl, तो यहाँ पे ये क्लोरो बेंजीन बनाता। अगर हम Br ले लेते तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बनाता। अब आपको एक बात हम और याद दिला दें कि आपने पढ़ी हुई गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पर कॉपर मेटल, कॉपर का सॉल्ट ना यूज़ करके कॉपर के साथ हम HX का यूज़ करते हैं, तब भी आपका हेलोबेंजीन बनता है। सो डोंट बी कंफ्यूज देयर, एंड दिस इज अ सैंडमेयर रिएक्शन। इट इज़ नोन एज अ स्टिफन रिएक्शन। स्टिफन रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल एल्डिहाइड। एल्किल एल्डिहाइड ऐसे मैंने बोला, वैसे ऐसे एल्किल एल्डिहाइड नहीं बोलते, सिंपली क्या बोलते हैं, इसे हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं। और यहाँ पर इससे किसे प्रिपेयर करते हैं, इसे नाइट्रल से प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रल्स का एक और नाम आप जानते हैं, CN से है, साइनो ना। तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, लाइक आपने ये यूज़ किया और CN नाइट्रल एक यूज़ किया और इसकी रिएक्शन आपने किसके संग करा दी, आपने इसकी रिएक्शन SnCl2 से करा दी और विद द HCl करा दिया। जब आपने इसके साथ रिएक्शन कराया तो CN का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर CN पे क्या होता है, C∭N होता है। पहला रिडक्शन होगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके पास H और इनके पास H आ जाएगा, तो क्या बन रहा है, RCH∭NH बन रहा है। क्या बन रहा है, RCH∭NH बन रहा है। और इसकी हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और हाइड्रोलिसिस कैसी होनी चाहिए बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए। लाइक आपका RCH है, ∭NH है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इनके पास H आएगा और इनके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H आएगा और इनके पास क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपका H और HOH, यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, आपका H2O रिलीज होता है। तो क्या बनता है, RCHO। क्या बनता है आपका, RCHO बनेगा आपका
आपका मेन प्रोडक्ट RCHO होगा और इसके साथ क्या रिलीज कर देगा ये NH3। मतलब दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड। किसके लिए यूज होता है? एल्डिहाइड्स। हाँ ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इट इज नोन एज अ रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन जो होती है, रोजेनमुंड रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एसाइल हैलाइड का हम या एसाइल क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं, जिसे आप एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, उसको हम रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। जरा आप ध्यान से देखेंगे रिएक्शन कि जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है एसाइल हैलाइड में बेंजोइल क्लोराइड का C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, इट इज़ नोन एज अ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड की रिडक्शन कराया। रिडक्शन का मतलब हमने H2 दिया और कैटलिस्ट हमने यूज़ किया पैलेडियम के प्रेजेंस में हमने बेरियम सल्फेट दिया, तो PdBlSO4 कहते हैं। और जैसे इसको करते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन मिलता है वो ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके पास एक H देगा, इसके पास एक H देगा, तो एक आपका माइनर प्रोडक्ट HCl निकलेगा और यहाँ पर क्या निकलेगा? C डबल बॉन्ड OH। तो रिंग पे जब C डबल बॉन्ड OH लगता है तो उसे आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? आप बताएंगे। आप कहते हैं उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं आप? बेंजल्डिहाइड। किससे बना है आपका? एसाइल क्लोराइड से बना है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। OI लगाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। This is a HVZ reaction. HVZ reaction is important and it is used for the preparation of the alpha halo acid के preparation में इसका use करते हैं। Like मैंने यहाँ पर use कर रखा है CH3CH2। CH2 को मैं लिख रही हूँ ऐसे करके ना, CH3CH2 COOH। Do you know the name of this? कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है आपका बेटा? प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड का हमने फर्स्टली क्या किया? हैलोजिनेशन कराया, अल्फा कंडीशन का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कराया और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। और इसकी क्या करा देते हैं हम? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से X निकल जाता है, HX, और इस पोजीशन पे क्या आ जाता है आपका? X आ जाता है। तो क्या बन जाता है आपका? CH3CHX COOH। तो यहाँ पर ये आया तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 2 हैलो। और 2 है या अल्फा पोजीशन भी है तो इसको आप क्या बोलते हैं? अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। तो ये अल्फा पोजीशन भी है, अगर इसका IPAC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और इसका IPAC है, क्या है? 2 हैलो प्रोपेनोइक एसिड। 2 हैलो प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पर X की जगह क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है और क्या हो सकता है? Br हो सकता है। ओके। तो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी अल्काइल हैलाइड है उसकी डबलिंग हो जाती है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें मिल जाते हैं। तो मोस्टली कहा जाता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें बनते हैं। जैसे कि हमने यूज़ कर रखा है CH3X। X की जगह फिर मैं बता दूं कि X की जगह आपका क्लोरो हो सकता है या हो सकता है क्या? ब्रोमो हो सकता है। तो यहाँ पर इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे हैलोमीथेन। क्या बोलेंगे आप? हैलोमीथेन बोलेंगे। हैलोमीथेन के साथ इसके रिएक्शन करा रहे हैं। 2 सोडियम ले रखा है, फिर से आपका मैंने हैलोमीथेन ले रखा है और ये रिएक्शन मैंने करा दिया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराएं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आप यहाँ साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 2NaX यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे CH3 बॉन्डिंग कर लेगा CH3 के साथ। तो CH3 बॉन्डिंग CH3 और प्लस 2NaX, तो ये आपका क्या बन गया? ईथेन बन गया। तो आपने यहाँ देखा कि मीथेन से किस में कन्वर्ट हो गया? ईथेन में कन्वर्ट। इसी की जैसी एक रिएक्शन होती है जिसमें आपकी फिटिग और वुड्स का मिक्सचर हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं आप? वुड्स फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। और वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वुड्स का और एक रिएक्टेंट किसका यूज़ करते हैं आप? फिटिग का यूज़ करते हैं। एक आपका वुड्स का रिएक्टेंट होता है तो एक रिएक्टेंट किसका होता है? फिटिग का होता है। तो लाइक हमने यहाँ पर यूज़ किया है बेंजीन। बेंजीन में अगर हम X लगा दें तो क्या बोलते हैं इसको? हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन की रिएक्शन हमने 2Na से करा दिया और इसके साथ साथ हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे क्या?
CH3X का यूज़ कर लिया, तो यहाँ से 2NaX अलग हो गया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अलग हो गया। और यहाँ पर मेन पोजीशन पे क्या लग गया है आपका, CH3, तो यहाँ पर आपने अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया और क्या निकल गया आपका 2NaX। नेक्स्ट रिएक्शन ये थोड़ा सा रिजेंबल करती है किससे, कोल्बे से। इसमें क्या होता है, फिनॉल है, फिनॉल आप सबसे पहले यूज़ करते हैं, और फिनॉल ये आपका क्या है, फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, और इसके साथ NaOH देते हैं। NaOH मैंने आपको कोल्ड में बताया था क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक करने के लिए। ये ब्लॉक करते ही यहाँ मेन पोजीशन पे OH नहीं रह जाता, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ONA हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्लोरोफॉर्म इसकी सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है और क्या बना लेता है, CHCl2 बना देता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ द इंटरमीडिएट। ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। और फिर उसके बाद इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। कैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देखिए आप जरा, कि यहाँ पर जैसे CHCl2 है तो ऐसे करके CHCl2 लिखते हैं। इनको H दिया, इनको क्या दे दिया, OH, फिर इनको H दिया, फिर इनको क्या दे दिया, OH, तो यहाँ से निकल गया क्या, वाटर, तो क्या बचा, CHO। CHO कौन सी पोजीशन पे आता है, ऑर्थो पे, और मेन पोजीशन पे क्या रहता है, ONA। तो यहाँ पर हम यहाँ पर NaOH से फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर मैंने HCl बताया है, आप इसकी अगर ONA से कराते हैं तो यहाँ पे Na आ जाता है, ठीक है। तो NaCl के 2 निकल जाते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन पर, और मेन पोजीशन पर रहता है आपका O- और Na प्लस रहता है। और अभी आपको पता है कि ये इस स्टेट पे रहता नहीं, तो हम इसे एसिडिफाइड कंडीशन देते हैं तो तुरंत Na प्लस अलग हो जाता है और O- के पास H प्लस पहुँच जाता है, और ये फिर से OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH ग्रुप में। और यहाँ ये क्या बना लेता है, CHO। जैसे ही बनता है इसका नाम क्या हो जाता है, सैलिसाइल्डिहाइड। क्या नेम होता है, सैलिसाइल्डिहाइड नेम होता है। इसी के साथ ही साथ हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो इसकी लास्ट रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन आपकी क्या है, हाफ मैन रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाउ कम टू द लास्ट रिएक्शन, दैट इज़ द हाफ मैन। हो सकता है कुछ छूटी भी हो, अभी मैं एक बारी देख लूँगी, फिर मैं और वीडियो ऐड कर दूँगी अगर कोई छूटी होगी तो। वैसे तो छूटी नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा अगर कोई छूटी हो तो, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं, डिग्रेडेशन इस रिएक्शन को इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, और डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसमें एमाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है अमाइन में। लाइक हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। अभी आपको ये पता चल रहा है ये अमाइड ग्रुप है, इसका नाम क्या है, इथेनामाइड है, इथेनामाइड है। इथेनामाइड की रिएक्शन हम कराते हैं Br2 से, और क्या दे देते हैं, 4NaOH दे देते हैं। तो यहाँ से 2NaBr अलग हो गया, एक हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 2NaBr बन गया। और प्रोडक्ट 4H है तो 4H को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने H2O बन जाएगा आपका, 2H2O बन जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 Na बचा और यहाँ पर CO है, यहाँ पर O, तो ये क्या बना लेगा, Na2CO3, और ये आप इससे हाइड करेंगे तो क्या दिखा है, CH3NH2। ये आपका मेन प्रोडक्ट है। means alkanamide will convert into the alkanamine with the degradation of one carbon is known as a Hofmann bromide degradation.